इस वार ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਪਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ है? प्री मानसून ਦੀ एंट्री कਦੋਂ ਹੁੰਦੀ है? अभी जो कंडीशंस आपको बने हुए हैं उसके अनुसार आपको पंजाब में आपका खासकर आपको वेस्टर्न पंजाब में आपको लू के कंडीशंस जो है आज भी ऑब्जर्व किए जाएंगे कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स में, और कल भी इसके ऑब्जर्व किए जाने की संभावना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मॉनसून जो है इस मंथ के एंड में एक्सपेक्टेड है कि उसकी यहाँ पर पंजाब में एंट्री हो जाएगी। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 42 ਸੀ, ਜਦੋਂ पंजाब का टेम्परेचर 48 सी। इसका कारण की है, इसके पीछे का रीज़न की है? और ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट तभी होती है जबकि ग्लोबल वार्मिंग का असर आपको आना शुरू हो जाता है, क्लाइमेटोलॉजी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ये स्पष्ट हो चुका है कि क्लाइमेटोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग का असर आना शुरू हो चुका है, और उसके लिए जिम्मेदार हम और आप जैसे लोग हैं। आप देख रहे हो कि नेचुरल वेजिटेशन नष्ट होते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, और कंक्रीट के जंगल आपको उगते जा रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? हमारे पास जो है आपको मतलब कि लॉन्ग टाइम क्लाइमेट एवरेज डाटा मौजूद है, हर एक दिन का, हर एक महीने का। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਲੂ ਹੈ, ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ AK ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ AK ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। धन्यवाद। ਸੋ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਪਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखिए, जहाँ तक लू की बात है, अभी जो कंडीशंस आपको बने हुए हैं उसके अनुसार आपको पंजाब में आपका खासकर आपको वेस्टर्न पंजाब में आपको लू के कंडीशंस जो है आज भी ऑब्जर्व किए जाएंगे कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स में, और कल भी इसके ऑब्जर्व किए जाने की संभावना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मॉनसून जो है इस मंथ के एंड में एक्सपेक्टेड है कि उसकी यहाँ पर पंजाब में एंट्री हो जाएगी, और उसके कंडीशंस बहुत काफ़ी फेवरेबल बन चुके हैं। और हम लोग प्री मानसून एक्टिविटी भी जो है कल परसों से ये कर दिया है कि पार्ट्स ऑफ पंजाब में आपको आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 24 और 25 मतलब आज और कल तो हीट वेव के कंडीशंस ऑब्जर्व किए जाएंगे। उसके बाद प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, कुछ पार्ट्स में आपको बारिश शुरू हो जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो है इस मंथ के अंत तक आपको मानसून की एंट्री पंजाब में हो जाएगी। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ? देखिए, जहाँ तक मानसून का बात है, हमारा जहाँ तक पूर्वानुमान है, इस बार जो मानसून जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। कल शायद आप 8, 9, 10 जुलाई को जो आसमानी आफत आई थी बारिश के रूप में, शायद आप उसका जिक्र कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली जो घटना हुई थी वो मानसून की घटना नहीं थी। उस समय मानसून तो एक्टिव था ही पंजाब में, साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ गया था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। दोनों ने मिलकर पूरे पंजाब में तबाही मचा दी थी, बारिश के रूप में तबाही मचा दी थी। जहाँ तक मानसून का सवाल है, ये तो आपको मतलब कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सवाल है,
इसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। तो हम तो यही कामना कर सकते हैं कि फिर इस तरीक़ा की घटना की पुनरावृत्ति न हो, फिर ऐसा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए जो कि ये कर दे, मतलब किस तरीक़ा से हैवॉक क्रिएट कर दे। वो जो 8, 9, 10 जुलाई की जो घटना थी वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट थी जिसका कि प्रेडिक्शन संभव नहीं है। हम सिर्फ ये कामना कर सकते हैं कि फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जहाँ तक मानसून है वो आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੇਗਾ? नहीं, जैसी मानसून की एंट्री हो जाती है, जैसी आपको मानसून की एंट्री हो जाती है पंजाब में, उसके बाद वो सीज़न ही पूरा मानसून का सीज़न आपको चलना शुरू हो जाता है। मतलब कि इंडिया के लिए 4 महीने जो बोले जाते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये आपको क्रूशियल महीने हैं, मानसून के महीने हैं। जैसे केरला में आपको 1 जून को एंट्री हो जाती है, अदर पार्ट्स में धीरे धीरे एंट्री होते हैं। जैसे अभी जो मानसून जो है आपको गुजरात के साउथ पार्ट तक पहुंच चुका है। यहाँ तक का जो रेट है, पंजाब का बात है तो पंजाब में आपको अंत में एंट्री होने वाली है। मतलब कि 27 जून एक्सपेक्टेड, मतलब कि क्लाइमेटोलॉजिकल डेट है, लेकिन इस महीने के आपको लास्ट तक उसके आ जाने की संभावना है। और जब भी आपको मानसून की एंट्री हो जाती है इंडिया में, तो वो पूरे इंडिया के वेदर को कंट्रोल में अपने ले लेता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और उसके साथ कोई छिटपुट जो घटनाएं होते रहती है, और जो घटनाएं जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री हुई, उसका तो प्रेडिक्शन संभव है नहीं। वो भी आ सकता है लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, जैसा कि पिछले साल आया था, तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ਇੱਕ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 42 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 48 ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈक्ट है? देखिए, इसके मेन जो रीज़न है, आप सिर्फ एक ही पर मत जाइए कि आपको गर्मी बढ़ी है, कि गर्मी जो है 40 से 48, कहीं कहीं 50 भी टेम्परेचर पहुंच चुका है। आप इस सिर्फ गर्मी पर ही मत जाइए, आप इस साल के जाड़े पर भी जाइए। जनवरी का जाड़ा आपको याद होगा, हाड़ तोड़ जाड़ा पड़ा था। जनवरी का कोहरा याद होगा, कोहरे के चादर में पूरा पंजाब लिपट गया था। आपको इसी साल पंजाब में एक और एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ था, फजिल्का में टॉर्नेडो, वो भी रेयर वेदर इवेंट था। उसके पहले आपने जैसा जिक्र किया 8, 9, 10 जुलाई की बारिश, उसको भी याद कीजिए। ये सब एक्सट्रीम वेदर के इवेंट हैं। और ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट तभी होती है जबकि ग्लोबल वार्मिंग का असर आपको आना शुरू हो जाता है, क्लाइमेटोलॉजी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ये स्पष्ट हो चुका है कि क्लाइमेटोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग का असर आना शुरू हो चुका है। और उसके लिए जिम्मेदार हम और आप जैसे लोग हैं। हम लोगों ने जितनी वातावरण के साथ छेड़छाड़ की है, आप देख रहे हो कि नेचुरल वेजिटेशन नष्ट होते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, और कंक्रीट के जंगल आपको उगते जा रहे हैं। आप जो भी एडवर्स वेदर से पीड़ित इलाके हैं, जैसे आपको भटिंडा हो गया, फजिल्का हो गया, आप खुद उधर जाके एनालिसिस कर लीजिए कि कितने पेड़ कट चुके हैं और कंक्रीट के कितने जंगल लगे हुए हैं। तो ये सब एडवर्स वेदर इफ़ेक्ट इसी के चलते आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, और दरख्त मतलब कि पेड़ जो है कटते जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन बस यही बचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ही नहीं, उनकी देखभाल भी करें, तभी इससे बचाव संभव है। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਰਬਨ ਸੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ही सिमट के रह जाएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक आप जिन डिस्ट्रिक्ट्स की आप नाम ला रहे हैं, सिक्किम की बात ले रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का नाम रहे, यहाँ पर मानसून की एंट्री हो चुकी है। और जो भी वहाँ पर बारिश हो रही है वो मानसून की बारिश हो रही है। और जहाँ तक आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। मानसून की एंट्री जो है इंडिया में आपको इससे होती है, केरला से होती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जहाँ तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आप बात कर रहे हैं, उसकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। ये मेडिटेरियन सी से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर से आता हुआ पंजाब, हरियाणा और जो नॉर्थ वेस्ट के स्टेट है जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, JNK, ये सब के वेदर को अफेक्ट करता है। तो दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल ही अलग है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो यहाँ पर आपको वेदर को डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब पंजाब और हरियाणा के कभी भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट जो सिनारियो आपको बने हुए हैं, जो आपको अरुणाचल में बारिश हो रही है, जो सिक्किम में बारिश हो रही है, वो मानसून की बारिश है, उसका यहाँ के वेदर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ गड़बड़ी है? देखिए, हमारे पास जो है आपको मतलब कि लॉन्ग टाइम क्लाइमेट एवरेज डाटा मौजूद है। हर एक दिन का, हर एक महीने का लॉन्ग टाइम क्लाइमेट डाटा मौजूद है। जैसे आज का दिन है 24 जून है। आज के दिन जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर लॉन्ग टाइम एवरेज जो है वो हमारे पास मौजूद है। आज के दिन जो लॉन्ग टाइम मिनिमम टेम्परेचर जो होना चाहिए वो हमारे पास मौजूद है। आज के दिन जो आपको मिनिमम बारिश एक्सपेक्टेड है ये आपको हमारे पास डेटा मौजूद है। इसी तरीक़ा से मंथ का जो मैक्सिमम डाटा है, मिनिमम, सारा का सारा हमारे पास मौजूद है। हम इसी को रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं। सपोज करिए कि आज के दिन, मैं सपोज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं बोल रहा हूँ, सपोज करिए कि आज के दिन यहाँ का टेम्परेचर जो है क्लाइमेटोलॉजिकल एवरेज मैक्सिमम है 38 डिग्री, और यहाँ पर जो है आपको 43 या 44 ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या? क्लाइमेटोलॉजी की ये काफ़ी हॉट डे है, आपको लू लाइक कंडीशंस आ चुके हैं, हॉट वेदर कंडीशंस आ चुके हैं। सपोज करिए कि जून में हम एक्सपेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज है कि एवरेज बारिश आपको जो होती है 40 mm होती है। मैं सपोज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बारिश सपोज करिए बिल्कुल नील हो जाती है। इसका मतलब क्या? जून का महीना जो है हमको काफ़ी सूखा महीना रहा है, चाहे 1 mm हो जाते हैं, जून का महीना काफ़ी सूखा महीना। ये खुद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इस बार मई का महीना लगभग सूखा रहा है, और अभी तक भी जो बारिश हुई है वो नाम मात्र की बारिश हुई है। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा ऑलरेडी मौजूद है। उसी को रेफरेंस पॉइंट बनाकर हम यहाँ किसी भी तरह की क्लाइमेटोलॉजी डिसाइड करते हैं, और उसी रेफरेंस पॉइंट से हम चलते हैं। जहाँ तक आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक पंजाब में बारिश का सवाल है, तो पंजाब में 2 कारणों से बारिश होती है। एक बारिश होती है मानसून की, जिसके लिए मंथ फिक्स है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मानसून का तो पीरियड हमने फिक्स कर दिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वो भी मालूम है कि जून के लास्ट में आपको आता है मानसून। और अदर बारिश जो होती है, जैसे आपको जनवरी में हो गई, फरवरी में हो गई, या फिर अक्टूबर में हो गई, नवंबर में है, वो सब मैक्सिमम इधर लोकल इफेक्ट के चलती है होती है, या फिर मेजर पार्ट जो होता है डिस्टर्ब होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते। तो जहाँ तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात है, इसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है। 6 या 7 दिन पहले हम देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के ऊपर से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, और उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी और कितनी आपको बारिश करवा सकता है, ये हम पूर्वानुमान 6 या 7 दिन पहले लगा लेते हैं, लेकिन इसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है। हाँ, मानसून सीजन एक्टिव होने वाला है इस महीने के लास्ट तक, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आएगा और किस तरीक़ा से आएगा, किस इंटेंसिटी में आएगा और किस रूप में आएगा, इसका प्रेडिक्शन नहीं, हम 6 या 7 दिन पहले उसको देख कर ही बता सकते हैं। ਏਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਪਤੀ ਲੂ ਸੀ, ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।